ہو رہی ہے تو شہر کے اندر آج سیاست بھی تھی اور سیاست کافی زوروں پر تھی کیونکہ معاملہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے یوم تاسیس کا تھا اور 23واں یوم تاسیس آج پورے کشمیر صوبے کے مختلف اضلاع کے اندر جو منایا گیا. جموں سے بھی کئی علاقوں کے اندر اس طریقے کی تقریبات بنانے کا آرگنائز کرنے کی خبریں جو ہے وہ موصول ہو رہی ہے. سری نگر کے اندر مرکزی تقریب تھی جہاں پر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے ایک بار پھر مرکز پر تاپڑ توڑ حملے کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ہزاروں کی تعداد میں افواج وادی کے اندر موجود ہے تب تک وہ امن کی بات کرتی رہیں گی اور امن تب تک ممکن نہیں ہے جب تک مذاکرات کے دروازے نہیں کھول دیے جائیں گے اور مذاکرات تب تک ناممکن ہے جب تک پاکستان اور جموں کشمیر کی قیادت کے ساتھ گفتگو نہیں ہوں گی. ترنگے پر بھی وار کرتے ہوئے آج ایک بار پھر محبوبہ مفتی نے کہا کہ جس طریقے سے ترنگے پر سیاست ہو رہی ہے دراصل یہ ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے. نہ صرف یہاں پر بلکہ انہوں نے G8 G7 ملکوں کی جو میٹنگز ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے کوڈ کو بنایا جا رہا ہے اس کو بھی حد پہ تنقید بناتے ہوئے کہا کہ اگر وشو گرو بننا ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ سارک کو مضبوط کیا جائے اور سارک کی مضبوطی کا دروازہ جموں کشمیر سے ہوتے ہوئے جا رہا ہے. محبوبہ مفتی کیا کچھ کہہ رہی ہے اس کو ذرا سن لیجئے گا. میرے ساتھ دو مہمان جوائن کریں گے, ڈاکٹر طاہر چودھری صاحب اور نجم الثاقب صاحب, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور BJP کے بڑے فراٹے والے ترجمان دونوں ہیں. پہلے محبوبہ مفتی کو سن لیتے ہیں. ضرور بنے گا کیونکہ اس میں وہ طاقت ہے, اس میں وہ جمہوریت ہے, اس میں وہ سیکولرزم ہے جس کو آج آپ تار تار کر رہے ہو. مگر اگر آپ کو وشو گرو بننا ہے اس کا راستہ جموں کشمیر سے گزرتا ہے. جب تک آپ مسئلہ کشمیر حل نہیں کریں گے آپ کے ٹانگوں میں بیڑیاں رہیں گی جموں کشمیر کی. آپ کا وشو گرو بننے کا راستہ G7 سے نہیں, G20 سے نہیں, کوڈ سے نہیں, بلکہ سارک سے ملے جہاں پر آپ کے اپنے ہمسائے, میں پاکستان کا نام لوں گی تو غصہ آئے گا, غصہ آتا ہے نا, سری لنکا, بھوٹان, نیپال اور جتنی بھی کنٹریز ہیں جو ساتھ میں ہیں, آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جب آپ اپنے ہمسایوں کے گرو نہیں بنیں گے تو وشو گرو کیسے بنیں گے؟ اور سارک کو آگے چلانے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات. اب میں نے پاکستان کا نام لیا, شام کو ٹیلی ویژن پہ بحث ہے جی خارجی, یہ جی فارن افیئر میں دخل دیتی ہے, خارجی معاملات میں دخل دیتی, کیوں نہ دوں میں؟ پاکستان کا بارڈر صرف جموں کشمیر کے ساتھ نہیں ملتا, پنجاب کے ساتھ ملتا ہے, راجستھان کے ساتھ ملتا ہے, گجرات کے ساتھ ملتا ہے, مگر گولہ باری صرف جموں کشمیر کے بارڈر پہ ہوتی ہے, جنگ صرف جموں کشمیر کے بارڈر پہ ہوتی ہے, 10 لاکھ فوج صرف جموں کشمیر میں ہے, ہمارے لوگوں کا جینا حرام صرف جموں کشمیر میں ہوا ہے. اس لیے جب تک آپ پاکستان کے ساتھ اپنے حالات نہیں سدھاریں گے تو جموں کشمیر میں یہ جو جنگ کا میدان بنا ہے, اکھاڑا بنا ہے, یہ کیسے ختم ہوگا؟ یہ کیسے ختم ہوگا جب تک آپ پاکستان کے ساتھ بات نہیں کریں گے؟ یاترا ہمارے سر آنکھوں پہ سینکڑوں سالوں سے یاترا چلتی ہے, مگر اس سال چلیے محبوبہ مفتی کو آپ سن رہے تھے. بیک ٹو بیک کئی سوالات آج انہوں نے مرکز کے سامنے رکھے ہیں, جموں کشمیر پر سیدھی بات کرنے کی کوشش کی ہے. نجم الثاقب صاحب پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ترجمان, ڈاکٹر طاہر چودھری صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب شروعات ذرا آپ ہی سے کرتے ہیں چونکہ آج بڑا اہم یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے, اس پر پہلا ریئیکشن آپ کا. جس طریقے سے محبوبہ مفتی کہہ رہی ہے کہ امن کے دروازے جناب جموں کشمیر سے کھلتے ہیں اور جب تک آپ وہ ڈائیلاگ اور انیشیٹو جموں کشمیر سے نہیں کریں گے شاید تب تک یہ ممکن نہیں ہے کہ صورتحال آگے بڑھ سکے. دیکھیے غور صاحب, PDP کی پریزیڈنٹ صدر جو محبوبہ مفتی ہیں, پچھلے کچھ دنوں سے ان کے بڑے بیان آ رہے ہیں, کبھی ترنگے کو لے کے, اور آج کا جو بیان تھا کہ دروازے جموں کشمیر سے کھلتے ہیں اور سارک کیا ہمیں کرنا چاہیے اگر وشو گرو بننا ہے, اس طرح کے ڈائلاگ. دیکھیے سرکار, پردھان منتری صاحب, ہوم منسٹر صاحب, دیش کی جو سرکار ہے وہ جانتی ہے کیسے حالات سدھارنے ہیں, کس سے بات کرنی ہے, کس سے نہیں بات کرنی ہے. اس ٹائم سے آپ ان سے پوچھ کے بات کریں گے کون سی میٹنگ ہم نے کال کرنی ہے, کن سے ریلیشن بنانے ہیں, کن سے نہیں بنانے ہیں. عجیب بات ہے, جب یہ چیف منسٹر تھی تب انہوں نے اس طرح کے کوئی ڈائلاگ واضح نہیں کی, اس طرح کی اسپیچز تب نہیں تھی.
ये इस टाइम पे पीडीपी के लोग पूरी तरह से बुखराए हुए हैं। जमीनी सतह पे ये लोग और सब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। इनके सभी लोग तो इनको छोड़ के जा चुके हैं। चंद लोगों की पार्टी है और किसी तरह से पब्लिक को गुमराह करने के लिए इस तरह के बयानबाजी करके मीडिया में रहने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं और कुछ नहीं। आपका ये मानना है कि जनाब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है और जज्बात को उबारने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की तरफ से इस तरीके का बयान दिया गया? ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है जी, ग्राउंड सारा बदल गया 2019 के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हालात बदल चुके हैं। कश्मीर का आवाम सब कुछ देख रहा है और सब कुछ समझता है। कश्मीर का आवाम बहुत इंटेलिजेंट है गौर साहब, और कश्मीर के आवाम ने वहाँ की रीजनल पार्टीज के सभी हालात देखे हैं, सभी मौसम देखे हैं। कैसे इन लोगों ने सरकारें चलाई, चाहे ये लोग हों, चाहे एनसी के लोग हों, चाहे और लोग हों, कैसे कश्मीर के लोगों को हैंडल करते रहे, किस तरह अपनी फैमिली की हुकूमतें चलाते रहे। अब इन लोगों को इस चीज का एहसास हो चुका है कि आने वाले टाइम पे जब सरकारें बनेगी, कश्मीर में जो चेहरे सामने आएंगे, नए चेहरे सामने आएंगे, नए लोग सामने आएंगे। पहली बार एक ऐसी जो प्रॉपर डेमोक्रेसी हम चाहते हैं कश्मीर के अंदर, एक नए लोगों का जो हम हजूम देख रहे हैं, उनकी सोच देख रहे हैं, किस तरह से वो देश के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, वो सारी चीजें जब सामने आएंगी तो इन लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास हो चुका है कि अब इनका आखिरी टाइम आ चुका है। ये पॉलिटिकल पार्टीज खत्म हो चुकी हैं। अब देखिए ना, इन्हीं के कितने लोग तो बाहर जा चुके हैं, उन्होंने अपनी पार्टीज बना ली, सब कुछ देखिए। कुछ लोग दूसरी पार्टीज में चले गए, बहुत कुछ हुआ श्रीनगर के अंदर। लेकिन सारी डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा लग रहा था कि शायद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो काफी कमजोर हो गई है, टॉप लीडरशिप बाहर चली गई, लेकिन जिस तरीके के आज शो करने की कोशिश की गई श्रीनगर के अंदर, नॉर्थ के अंदर, साउथ के अंदर, उसे हम कैसे देखें? एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर अगर आपसे ये मैं पूछूं, क्या रिवाइवल इन द पार्टी है ये? नहीं, देखो गौहर साहब, ये लोगों का जो गढ़ थे पीडीपी के, अब वहाँ के हालात देखिए, वहां पे इनके कौन से कॉर्पोरेटर जीते और चेयरमैन कौन लोग हैं, सारी चीजें ग्राउंड रियलिटी पे देखिए ना, ग्राउंड की हकीकत देखिए, वहां पे क्या कुछ है इनका बहुत सारी चीजें इनकी डिस्टर्ब चल रही हैं। इनके जो मेन पिलर थे वो लोग इनको छोड़ के जा चुके हैं, और इस टाइम पे इस तरह की सियासत करना, इस तरह लोगों को गुमराह करना, फिर सोचना कि किसी तरह से हम जमीनी सतह पे अपनी पकड़ बनाए, ये चीजें अब पॉसिबल नहीं है। कश्मीर का जो यूथ, कश्मीर का आवाम बहुत आगे निकल चुका है, इन लोगों को अच्छी तरह से जानता है, समझता है, और वो लोग फैसला करेंगे कि कश्मीर में किसको लाना है, किसको आगे आना है। तो ये चीजें अब नहीं चलेंगी। हिंदुस्तान बदल चुका है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है, अब इस तरह की बयानबाजियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डॉक्टर साहब जरा बने रहिएगा, नजमू साकिब साहब भी मेरे साथ है। नजमू साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आज 2-3 जगहों पर बड़ी गैदरिंग्स हुई है, लेकिन बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि जनाब दम नहीं है पार्टी के अंदर, इसलिए इस तरीके के बयानात दिए जा रहे हैं, जज्बात को हवा देने की कोशिश की जा रही है। और अब लोगों को समझ आ चुकी है कि ये जो बाग दिखाए जा रहे हैं, सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, दरअसल इसके पीछे क्या कुछ है, और लोग बड़े इत्मीनान के साथ है 2019 के बाद। देखिए, ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। जो बौखलाहट आज इनको देखने को मिल रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, जो आज गहमा गहमी जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का 23वां जो फाउंडेशन डे था, आज जो हर जगह हलचल थी, लोगों कतार दर कतार जो है हर जगह, चाहे वो बारामूला में हो, श्रीनगर में हो, अनंतनाग में हो, पुंछ में हो, राजौरी में हो, जम्मू में, डोडा में, तो ये तो एक्सपेक्टेड है कि इनको बौखलाहट होगी, तो वो तो है ही, वो तो मानते हैं। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी जो है ये ख्वाब गफलत में है अभी। ये लोग अभी जो है, इनको लगता है हिंदुस्तान पे हम लोगों ने आज जो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को हमने फतह कर लिया है, और जो हमारी मनमानी है तो हम वही आगे करके चलेंगे। देखिए, बात उस चीज की नहीं है। आज देखिए, छोटी छोटी चीजों पे हुकूमती चला कैसे रहे हैं। ये हम जनाबों को बोलते हैं कि आप जो है झंडे घरों पे लगा दीजिए, मगर ये जनाब, इनमें वो हिम्मत नहीं है कि जहां 1000 किलोमीटर चाइना ने जो है हिंदुस्तान से जो खा लिया है, उस पे झंडे गाड़ने की या उस पे बात करने की जब बात आती है तब बात नहीं। हमने इनको बोला जनाब कि आप विश्व गुरु की बात बनने की बात कर रहे हैं। विश्व गुरु आप तब तक कैसे बनेंगे जब तक आप जम्मू कश्मीर की जो मसले मसाइल है, हालात है, रोजमर्रा की जो किलिंग्स है, वो कैसे आप करेंगे? और जब तक आप सार्क को लेके नहीं चलेंगे, और सार्क में सबसे बड़ा जो अगर इम्पेडिमेंट है, बन रहा है, कोई कांटा है, वो तो जम्मू कश्मीर का मसला है, तब जाके हम इसलिए बोल रहे हैं इनको कि जनाब आप पाकिस्तान से बात करिए, तब जाके आप, क्योंकि वाजपेयी जी ने की तो अमन आ गया यहाँ पे, ये तो आया है इनको। तीसरी बात हमने जनाब जो इनको बोली, हमने इनसे ये कहा कि जनाब आप देखिए उस पार वाला कश्मीर, पाकिस्तान ने उसको स्ट्रेटेजिक यूज के लिए सीपेक बनाया वहां से, आज उन्होंने उस कश्मीर को पूरी दुनिया के साथ जोड़ दिया है PRI में।
हम जब उस चीज की बात करते हैं तो बोलते हैं जनाब आपने जो देशद्रोह की बात करी, आपने इंटरनेशनल बात की। अब देखिए इनको समझ नहीं आ रही है बात। अब जब वाजपेयी जी बड़े स्टेट्समैन थे जो भी आरएसएस से आते थे, हमें कोई बैत नहीं उनसे कि वो आरएसएस से आए। आज जम्मू कश्मीर के लोग उनका नाम इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो समझते थे हालात कितने पेचीदा है। 70 साल हो गए जनाब। आप मुझे बताइए, इनको भी अब जो 2014 के बाद से तो ये भी हुकूमत कर रहे हैं, तो हालात कौन से जम्मू कश्मीर के ठीक हुए? पेचीदा होते जा रहे हैं। ठीक है जी, नजमी साहब बस एक मिनट। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जनाब तरक्की तो सिर्फ वहीं से होनी है, सार्क को रिवाइवल कीजिए और सीधी सीधी बात पाकिस्तान के साथ डायलॉग कीजिए, जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के साथ डायलॉग कीजिएगा। क्या वाकईतन डायलॉग का वक्त आ गया कि डायलॉग किया जाए? और साहब देखिए, डायलॉग की जो बात है, किससे बात करनी है किससे बात नहीं करनी है, ये हमारी सरकार, सेंटर की हाईकमान इन चीजों के ऊपर डिसीजन लेती है। उनकी अपनी प्लानिंग होती है, अपना काम करने का तरीका है और सारी चीजें वहां से कंट्रोल होती हैं। हमें ये अब पीडीपी से पूछ के हमें सरकार नहीं चलानी है, पीडीपी से पूछ के हमें जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं सोचना है, पीडीपी से पूछ के हमने ये नहीं देखना है कि कहेंगे उससे बात कीजिए तो उससे करें। ऐसे नहीं होता है। बहुत बड़ी देश की पॉलिसी है, बहुत सिस्टम है, बड़े ढंग से सारी चीजें हैंडल की जाती हैं और सरकार सब कुछ देख रही है। सरकार को सब कुछ बेहतर ढंग से मालूम है, सारी चीजों का हमें मालूम है किस तरह सरकार जिससे बात करनी होगी, जैसे होगा वैसे किया जाएगा। और मुझे लगता है कि इस तरह इनके भाषण सुनने से और भाषण देने से अगर सरकार काम करने लगे तो फिर बहुत कुछ हो गया। और इनके जो भाषण है आप जानते हो, आप भी जानते हो, कश्मीर का आवाम भी जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है इन लोगों को। एक सवाल जो आज लगातार एक स्ट्रेस देकर साउथ कश्मीर में भी पूछा गया, महबूबा मुफ्ती ने भी उसको कोट किया, नॉर्थ में इनके सीनियर लीडर थे, उन्होंने भी ये कहा कि जनाब अगर सब कुछ ठीक ठाक है और 2019 के बाद जो दावा है पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, तो फिर इतनी अफवाज क्यों है, इतनी कदगने क्यों है, सहाफ़ियों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, ब्लैक लिस्ट में लोगों को डाला जा रहा है, क्यों? क्या कोई डर सता रहा है या वाकईतन हालात ऐसे हैं कि बाहर कोई न जाए? ये तो एक सवाल आज नॉर्थ सेंटर और श्रीनगर से भी पूछा गया। नहीं देखिए वो सब सेंट्रल हाई कमांड, माननीय प्रधानमंत्री साहब और उनकी टीम बहुत सारी चीजें देखती है और स्पेशली जम्मू कश्मीर के ऊपर जितना ध्यान दिया जाता है बहुत अच्छे ढंग से दिया जाता है और जम्मू की बेहतरी की जो चीजें होती है उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज हैं, सारी चीजें देखी जाती हैं और सरकार का अपना काम करने का तरीका है, एजेंसीज का अपना तरीका है काम करने का, जो अपडेट्स दिए जाते हैं उन्हीं के ऊपर फैसले लिए जाते हैं और ये अच्छी तरह से सरकार देख रही है सारा कुछ, जो उनको बेहतर लगेगा उस ढंग से वो डिसीजन लेंगे और फैसले लेंगे। नजमुल साकिब साहब, क्या आप मुतमईन हैं जिस तरीके से जवाब आ रहा है सरकार से? करेंगे जनाब हम ग्राउंड रियलिटीज को एसेस करने के बाद, चेक करने के बाद ही हर एक डिसीजन को लेते हैं और इस तरीके से सियासत में और शोफदाबाजी में यकीन नहीं रखते हैं और अगर हमने ऐसा करना है तो फिर तो हमें और ही किसी डगर में चलना पड़ेगा। दो तीन चीजें। एक, ये जो अभी मेरे से पहले पैनलिस्ट बोल रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, ये हाई कमांड जो है वो डिसाइड करती है। अरे जनाब, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को अकल नहीं है, जहानत नहीं है? क्या वो इस काबिल नहीं है कि वो अपना फैसला खुद ले सके? हाईकमांड से डिसीजन लेनी चाहिए। आप तो 70 साल कांग्रेस को ये ताना देते थे कि हाईकमांड कल्चर है। आप कब से इस हाईकमांड कल्चर में जो पड़ गए, इलीट कल्चर में पड़ गए कि दिल्ली से फरमान आएगा और यहाँ पे उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन हुई? ये है नंबर एक पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट जनाब, अगर हालात जम्मू कश्मीर में ठीक है, आपने देखा कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट दी, जुबैर वाले जो मसला, जो ऑल्ट न्यूज वाला इशू उठा था, उसके बावजूद हमारे एक जर्नलिस्ट सहाफी जो कलीग हैं, आकाश हसन जिनका नाम था, बेचारे बाहर जाना, श्रीलंका कवर करने के लिए जा रहे हैं, आप रोजी रोटी कमाने जा रहे थे, कवर करने जा रहे थे क्राइसिस को, उनको जो है ईसीएल लिस्ट पे डाल दिया है। आपको नहीं पता गवर्नर साहब कि अब आपको भी डाल दिया, क्योंकि आपसे भी शायद इनको डर लग रहा हो कि आप वैसे सवाल ना करें, आपको इसीलिए डराया धमकाया जाएगा। अरे जब अगर जनाब सारा ठीक है, अगर हालात ठीक हो गए, 370 हटाया, 35 से हटाया, 10 लाख फौज है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है जनाब? फिर लोग जेलों में क्यों हैं? फिर मीडिया पे कदम क्यों है? फिर आज आए जिन लोग नौकरियों से क्यों निकाल रहे हो? अब जहाँ पे आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर रहे हो उनमें स्कैम्स क्यों आ रहे हैं? आज ये तो कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही नहीं कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं जिनमें धांधली है खुद वापस ले रहे हैं। अरे कर क्या रहे हो जनाब? अच्छा जी, बड़ा डॉक्टर साहब पैर से बड़ा लास्ट पे जरा आपसे भी पूछूं, क्योंकि अभी अब नौकरियों का मामला चला, तो आज जम्मू कश्मीर एक और पार्टी
जो दिल्ली से लॉन्च हुई और जम्मू कश्मीर में उन्होंने अपने कदम जमाना शुरू कर दिए हैं, अरविंद केजरीवाल की जमात, उन्होंने आज बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ताबड़तोड़ हमले बीजेपी पर भी किए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर भी किए और कहा कि जनाब नेक्सस इन दोनों का है जी, हेड एंड टेल वाला मामला इनका है। और ये जो फायर सर्विस वाली लिस्ट में उन्होंने आज डॉक्यूमेंट्स के साथ ये कहा कि किस तरीके से दांधिया की गई और करवाई गई फ्रॉम द हाईएस्ट चेयर। देखिए गौर साहब, ये आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह के इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पे लगाना, ये बेबुनियाद इल्जाम हैं। इन चीज़ों को हम नहीं मानते हैं। जहाँ तक ये चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की लिस्टों में और दूसरी चीज़ों में आई हैं, उसके ऊपर ऑनरेबल एलजी साहब ने बड़ा स्ट्रिक्टली एक्शन लेने के लिए कहा है और मुझे लगता है जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी ताहिर चौधरी साहब और नजमुल साकिब साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। वक्त की कमी है, मैं माजरत चाहूंगा, यहाँ पर मैंने वाइंड अप करना है। छोटा